Hello everyone, so welcome to your own channel. So in today's class we will make few programs based on string array. So let's start. So the first program is write a program to enter 10 words in a single dimensional array and search the entered word by using the linear searching. So linear searching term we have used, and linear searching, binary searching and sorting we have already discussed in our previous videos while working on array of numbers. And here the difference is we are using the string array instead of number array, right? So there will be small changes at some places, so we will discuss it now. So let's start. So in linear searching what we do exactly, we search either a number or a string from the beginning to the end, right? So from the beginning to the end we search a number or a string. In this case we will search a string, right? So if it is there, then it should come out from the loop by breaking the loop, and if it is not there, then it should display a message. So let's see. So to make this program we have already taken the imported the util package, linear str is the class, and scanner object we have already created. Now we need to create the array in which we will store the 10 words. So what is that array? How you will declare that? That will be array of string. Then string ar, this is the array name, equals to new string, and the size is 10, right? Then we will take a variable of integer type, that is the found, and we will initialize with -1, right? After that we will display a message system.out.println enter any 10 words as it is asked in the question, right? And this we will give before the loop, so that it should not be repeated, it should be displayed only once. So then for loop, for int I equals to 0, I less than कितने words है? 10 words. I less than 10, I plus plus, then arr I equals to obj.next. ठीक है? तो जो हम स्ट्रिंग देंगे वो कहाँ साइन हो जाएगा? एरे में. नाउ वी विल अप्लाई द लूप फॉर सर्चिंग. तो बिफोर दैट वी नीड टू एंटर अ सर्च वर्ड. तो विल डिस्प्ले अ मैसेज अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर अ सर्च वर्ड विच वी नीड टू सर्च इन अ एरे. सर्च वर्ड, राइट? Then that word is search word ही ले लेते हैं, search underscore word, right? Search underscore word equals to obj dot next, right? So this is the word search word which we need to search. Search word का type क्या होगा? Again it will be string. ठीक है? Now we will apply the loop. कहाँ सर्च करना है हमें? एरे में. एरे कहाँ से कहाँ तक? 0 से 10 तक चलेगा. For int I equals to 0, I less than 10, I plus plus. तो loop again 0 से 10. सर्च करेंगे if search underscore word, that is the variable name. अभी हम इक्वल साइन नहीं लगाएंगे बिकॉज वी आर टेकिंग स्ट्रिंग हेयर. स्ट्रिंग को इक्वेट चेक करना है तो क्या यूज़ करते हैं? फंक्शन यूज़ करते हैं. कौन सा? इक्वल्स. स्ट्रिंग का फंक्शन है एक इक्वल्स, और एक कंपेयर टू भी है. आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. कैसे यूज़ करना है? इधर यू यूज़ सर्च वर्ड डॉट इक्वल्स. चलो इक्वल्स यूज़ करके दिखाते हैं पहले. इक्वल्स और ब्रैकेट में दे देंगे हम ARRI. ठीक है? अभी वो चेक कर रहा है कि फिर इफ का ब्रैकेट क्लोज. इफ सर्च वर्ड डॉट इक्वल्स एरे का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में आई पास किया. ठीक है?
एक तो मेथड ये है इक्वल्स यूज़ कर लो, अदरवाइज कैसे है, इफ सर्च वर्ड डॉट कंपेयर टू ARRI इक्वल्स टू 0, उसमें आपको देना होगा इक्वल्स टू 0, तभी वो इक्वल होगा, ठीक है। या फिर इक्वल्स कर लो या डॉट कंपेयर टू एरे नेम इक्वल्स टू 0 है तो क्या करें, अगर ये है तो इक्वल है तो क्या होना चाहिए, आपका जो फाउंड वेरिएबल लिया है, जो इनिशियलाइज हमने -1 से किया था, फाउंड में क्या आ जाए, उसका इंडेक्स जहाँ पे वो स्ट्रिंग सर्च हुआ मिला उसे, ठीक है। फाउंड इक्वल्स टू I और ब्रेक हो जाए, ठीक है, यही करते थे। अब जब ब्रेक लूप से बाहर कब आएगा, या तो पूरा लूप चला उसको सर्च नहीं मिला, और या फिर मिला और ब्रेक होके आया बीच में, तो हमें चेक करना होगा इफ फाउंड इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। देखो इनिशियलाइज हमने -1 किया था, ठीक है, बट यहाँ पे अगर मिला तो क्या हो गया, फाउंड इक्वल्स टू उसका इंडेक्स आएगा, तो इंडेक्स कैन बी 0 और ग्रेटर देन 0, है ना। तो उस केस में हमने चेक किया इफ फाउंड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यानी कि वो सर्च वर्ड मिल गया है, उसके बाद ब्रेक हो गया है, तो हम क्या डिस्प्ले कर देंगे, SOPLN सर्च वर्ड इज फाउंड एट, मैसेज डिस्प्ले कर दे, प्लस फाउंड में वैल्यू चली जाएगी उसके, तो हम फाउंड को डिस्प्ले कर देंगे, तो ये उसका लोकेशन इंडिकेट करेगा, ठीक है, इंडेक्स रिटर्न करेगा। अदरवाइज मीन्स फाउंड की वैल्यू -1 ही है, तो इट मीन्स उसको नहीं मिला है, सर्च वर्ड नोट फाउंड मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, सर्च वर्ड इज नोट फाउंड, मेन क्लोज क्लास क्लोज। सिंपल है, बट डिफरेंस कहाँ आएगा, सिर्फ ये स्ट्रिंग कंपैरिजन करते हुए, डबल इक्वल की बजाय हम इक्वल्स फंक्शन लगाएंगे। सो दिस इज द लीनियर सर्च टू सर्च अ वर्ड इन द एरे ऑफ स्ट्रिंग। I hope you have understood. Okay, now we will see the same program by using the binary search. So binary search, if you remember what we do in binary search, whether in case of number or in string. So if this is the array of 10 size, so in binary, first thing, binary search always works with sorted array, right? With unsorted, it will not work. So first, we need to input a message that enter 10 words in an ascending order. Right, so it should ascending or descending, but it should be sorted, right? So in binary search, what we do, we take the two variable like start, end, ठीक है, start indicate the first index and end indicates the last index. Then we need to find out the midpoint. तो mid क्या हो जाएगा, start plus end by 2. तो इन केस ऑफ दिस मिड पॉइंट आपका आ गया 4, तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो सर्च वर्ड है अगर 4 के प्लेस पे है, मिड के प्लेस पे है, अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, वो लूप से बाहर आ जाएगा ब्रेक होके। अगर नहीं आता तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि वो सर्च वर्ड फर्स्ट हाफ में है या सेकंड हाफ में है, इसीलिए हम सॉर्टिंग लेते हैं। तो पता चल जाएगा अगर हमारा वर्ड, सपोज आपका ये जीवन है, अगर हमारा वर्ड स्टार्ट होता है F से, ठीक है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ में आएगा, राइट। तो वी विल चेक whether the word will come in the first half or second half. If it is in first half, तो क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट तो यही रहेगा 0 और एंड क्या चेंज हो जाएगा, मिड -1, 3 हो जाएगा। तो 0 से 3 हमें मिला, फिर 0 से 3 अगेन वी विल फाइंड आउट द मिड पॉइंट। ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया, मिड पॉइंट ले गए, फिर से चेक करेंगे कि मिड पॉइंट पे है या नहीं, अगर नहीं है तो द प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग, ठीक है। तो यही करते थे बाइनरी सर्च में, तो सेम हम स्ट्रिंग के केस में भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सी वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड द क्लास, स्ट्रिंग का एरे बना लिया है आपका 10 साइज का, एक फाउंड वेरिएबल लिया है, -1 इनिशियलाइज कर दिया, एंटर एनी 10 वर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर, वी विल एड इन दैट एंटर एनी 10 words in ascending order. We are considering the case ascending.
ठीक है, इट्स योर विश, आप डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, राइट। सो इट इज़ नॉट मैंशन, आपका सिर्फ सर्च करना है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर, एंटर एनी 10 वर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर वी हैव रिटन हियर। नाउ वी हैव टेकन अ लूप 0 to 10, ऑलरेडी एरे में वैल्यू चली गई हैं आपकी, 10 वर्ड्स स्टोर हो गए हैं। देन सर्च वर्ड भी हमने एंटर कर लिया, स्टोर कर दिया। दिस आई हैव टेकन फ्रॉम द प्रीवियस प्रोग्राम ओनली। नाउ व्हाट चेंजेस विल वी डू नाउ, वी विल टेक वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स लेंगे, या तो यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हो, स्पेस नहीं है तो सेमीकोलन के बाद हम यही लिख रहे हैं, इंट क्या ले, स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज कर देते हैं, एंड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और एक और इनिशियलाइज कर देते हैं, मिड। तो स्टार्ट एंड मिड हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए। दिस इज आफ्टर सेमीकोलन, सो इट विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। ओके, नाउ वी विल अप्लाई द लूप while start less than equals to end। कब तक लूप चलेगा, जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड है। क्या करेंगे, सबसे पहले मिड निकाल देंगे। मिड क्या हो जाएगा, स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, ठीक है। देन वी विल चेक इफ सर्च वर्ड डॉट इक्वल्स किसके, एरे नेम, और उसमें इंडेक्स क्या देंगे, मिड। अगर वो मिड है तो मतलब मिड के प्लेस पे वो वर्ड मिल जाता है, तो क्या करें, फाउंड का वैल्यू आपका जो इंडेक्स या मिड ही होगा, अब तो मिड को ही चेक कर रहे हैं, तो फाउंड इक्वल्स टू मिड हो जाएगा और ब्रेक कर जाए। अगर बाई चांस आपका यही था G1, ये स्मॉल लिए, स्पेस नहीं था तो G1 ले लिया वर्ड, तो G1 वर्ड अगर है तो अगर मिड पे ही मिल गया है तो ब्रेक कर जाए और बोल दे कि 4 पे ही वी हैव फाउंड द सर्च वर्ड, ठीक है। अगर नहीं मिला है तो क्या करें, एल्स इफ अब हम कंपेयर करेंगे कि सर्च वर्ड फर्स्ट हाफ में है या सेकंड हाफ में। तो कंपेयर कैसे करते हैं हम, इफ सर्च वर्ड, थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एल्स इफ सर्च वर्ड डॉट कंपेयर टू, वी विल यूज विच फंक्शन, compare to, bracket start, and in bracket we will write, I am writing here, compare to के बाद bracket start है, array mid, bracket close, compare to का अगर less than 0 है, ठीक है, less than 0 है मीन्स आपका lesser है, मीन्स फर्स्ट हाफ में है, तो क्या हो जाए, आपका जो मिड का ये एंड का वैल्यू है मिड -1 हो जाए, एंड इक्वल्स टू मिड माइनस 1, ठीक। अदरवाइज एल्स में कब जाएगा, वो सेकेंड हाफ में है, तो सेकेंड हाफ में है तो क्या हो जाना चाहिए, स्टार्ट आपका क्या हो जाएगा, मिड +1, स्टार्ट इक्वल्स टू मिड +1 हो गया, ठीक है। फिर वाइल हो गया क्लोज। अब जब लूप से बाहर आया तो हम चेक कर लेंगे वही सेम कंडीशन, इफ फाउंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो SOPLN सर्च वर्ड फाउंड, सर्च वर्ड फाउंड एट प्लस फाउंड, ठीक। एल्स में सर्च वर्ड नॉट फाउंड, सर्च वर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। सेम है नंबर एरे का, डिफरेंस कहाँ हुआ, व्हेन वी कंपेयर, यहाँ इक्वल्स लगाएंगे और जो लेस देन है तो हम कंपेयर टू एरे मिड लेस देन 0, और एल्स में तो स्टार्ट इक्वल्स टू मिड, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही आपका। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस।
Now we will see the next program, that is write a program to input 10 country names and sort them in ascending order using bubble sorting. So bubble sorting use करके 10 country names को sort करना है, order में लाना है. किस order में? Ascending order में. तो bubble sorting we have already used. I hope you remember the bubble sorting. Bubble sorting में क्या होता था? Bubble sorting में comparison होता है adjoining elements में. लाइक जो एलिमेंट इसमें है, सपोज आपका x1, y1, a1, b1, a2, वट एवर इट इज, c1, d2, f5, g1, h2. ठीक है, ये कुछ भी हमने वर्ड्स ले लिए हैं. ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो 2 एलिमेंट्स हैं कंपेयर होंगे, एडजॉइनिंग एलिमेंट. पहले ये और ये कंपेयर होगा. इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकेंड वन, तो क्या हो जाए, स्वैप हो जाए, है ना. और फिर हम इसको और इसको चेक करेंगे. इफ़ दिस एलिमेंट इज ग्रेटर देन दिस, तो उसका वैल्यू भी स्वैप हो जाए. फिर इसका एडजॉइनिंग एलिमेंट्स का पूरा कंपैरिजन होगा व्हेन i इक्वल्स टू 0, और यू कैन से फर्स्ट पास में, पास 1. तो i1 होगा. फिर से इसका फर्स्ट सेकंड का. तो एक पास में क्या होता है कि एक पास में हमारा एक एलिमेंट फिक्स हो जाता है फाइनल पोजीशन पे. यानी कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है, जब एक पास कंप्लीट होगा, लार्जेस्ट वैल्यू वो हमारी फाइनल पोजीशन पे आ जाती है लास्ट में, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना. ठीक है, तो फिर सेकंड पास होगा तो उसमें सेकंड एलिमेंट फिक्स हो जाएगा. देन थर्ड पास में ये थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट, ये आपके फिक्स होते रहेंगे. तो हमें कितने टाइम्स इटरेशंस चाहिए, कितने पासिस होंगे. अगर 10 एलिमेंट्स है तो 9, बिकॉज अगर 9 एलिमेंट अरेंज हो गए तो 10th को करने का ज़रूरत नहीं होता. तो इसीलिए हमें कितने इटरेशंस चाहिए, 9 इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 10. ठीक है, और ये जो इनर लूप लगेगा, ये जे का आपके उसमें कंपैरिजन के लिए, एलिमेंट्स के एडजॉइनिंग एलिमेंट्स का कंपैरिजन के लिए आपका जे लूप लगेगा. और इस जे लूप में जब आपका एक एक फिक्स होता रहेगा तो वो सब्ट्रैक्ट होता रहेगा. चलिए समझते हैं. फर्स्ट वी विल क्रिएट द स्ट्रिंग एरे इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग. इसमें भी 10 नेम्स हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे. फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, उसमें वैल्यू इनपुट करने के लिए. और क्या वैल्यू इनपुट कर देंगे, एरे i में obj डॉट नेक्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट ले सकते हो, नेक्स्ट लाइन ले सकते हो. ठीक, राइट. देन आफ्टर दिस वी नीड टू सॉर्ट इट आउट. तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वी विल अगेन अप्लाई द लूप. फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन, कितना लूप चलेगा आपका, लेस देन 9. ठीक है, बोला था अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो 9 बार लूप चलेगा. लेस देन 9 मतलब लेस देन इक्वल्स टू 8, तो 0 से 8 मतलब 9 बार लूप चलेगा. i प्लस प्लस. ठीक, अभी हम फॉर इनर लूप लगाएंगे. इंट j इक्वल्स टू, j कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लास्ट तक. लेकिन जब एक एक वैल्यू फिक्स होती जाएगी तो उसका वैल्यू देखो, जब i 0 है तब आपका पूरा लूप चला, j का पूरा कंपैरिजन हुआ यहाँ से लास्ट तक. पर जैसे ही i 1 होगा तो आपका लास्ट वैल्यू फिक्स हो चुकी होगी, तो अब j का लास्ट को टच नहीं करेगा, यहाँ तक सेकंड लास्ट तक चलेगा. जब i 3 होगा तो ये आपका थर्ड एलिमेंट, लास्ट से थर्ड एलिमेंट तक चलेगा. लास्ट 2 एलिमेंट्स को टच नहीं होगा, वो फाइनल पोजीशन पे पहुंच गए हैं. तो आपका j कम होता जा रहा है ना. तो j का वैल्यू कैसे कम दिखाएंगे, j लेस देन 9 माइनस i. ठीक, देखो इसके कंपैरिजन भी अगर 10 एलिमेंट्स होते कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 एलिमेंट्स है तो 9 बार इसका चला. लेकिन उसमें माइनस i क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हर एक पास में फाइनल आपका जो एक वैल्यू है वो फाइनल पोजीशन पे आती जा रही है. सेकंड पास में 2 वैल्यू आ जाएंगी,
यानी कि i का वैल्यू सब्ट्रैक्ट होता रहेगा। i 0 है तो पूरा चला, 1 है तो एक वैल्यू गया, i 2 है तो 2 वैल्यू, i 3 है तो 3 वैल्यू, तो इसीलिए हमने 9 माइनस i किया है, j प्लस प्लस। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करना है हमें। ठीक है, और कंपैरिजन है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे करते हैं, इफ़ str str नहीं है, a है, इफ a j ग्रेटर देन चेक करना है हमें, तो डॉट कंपेयर टू, किससे कंपेयर कर रहे हैं, a j प्लस 1 एडजॉइनिंग एलिमेंट, अगर वो ग्रेटर देन 0 है ना, अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या कर दे, उसको स्वैप कर दे। और स्वैप कैसे करते हैं, एक टेम्परेरी स्ट्रिंग लेके, इस केस में स्ट्रिंग लेंगे, किसका वैल्यू चला जाए पहले, इसका, ये क्या है हमारा a ठीक है, इसका वैल्यू एक स्ट्रिंग में चला गया, और फिर हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू इधर डाल देंगे, जैसे एक्सचेंज करते हैं, स्वैप करते हैं, तो j प्लस 1 का वैल्यू कहाँ आ गया, j में आ गया। ठीक है, और लास्ट स्टेप में क्या कर देंगे, हम टेम्प का वैल्यू असाइन कर देंगे, कहाँ पर, j प्लस 1। ठीक, ये हो गया हमारा इफ क्लोज। देन हो गया हमारा फोर लूप इनर क्लोज, और फिर फोर लूप आउटर क्लोज। ठीक है, जैसे इसको कंपेयर किया और वो स्वैप होता रहे, तो हमारा लूप चलता रहेगा, तो ये आपका लास्ट में आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा सारे स्ट्रिंग, और लूप से बाहर आके हम सिंपली उसको डिस्प्ले कर देंगे फॉर इंट, या मैसेज दे देना है SOPLN sorted array system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln sorted array इक्वल्स टू, मैसेज डिस्प्ले कर दिया और उसको सिंपली डिस्प्ले कर देंगे फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस SOPLN, या SOP हॉरिजॉन्टली देना है तो SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे i, तो ये हमारा सॉर्टेड एरे मिल जाएगा, मेन क्लोज क्लास क्लोज। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, सेम ही है जैसे नंबर में किया था, बस यहाँ कंपैरिजन में आप टर्म कंपेयर टू, अगर ग्रेटर देन 0 है ये यूज़ करेंगे, अदरवाइज आपका सेम ही है। तो अगेन आई एम टेलिंग, इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो इन विच वी हैव डिस्कस बबल sorting and searching in detail with number array, then you should watch it before this. ठीक है, now the next program is write a program to accept a word in a single dimensional array, arrange all the elements in ascending order, display the new word this. So sample input में एक word दिया है आपको blue jay, और आउटपुट कैसा दिखाना आना चाहिए, BEJLU। ये क्या हुआ है आपका, ये अरेंज किए हैं कैरेक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर में, B के बाद E आ जाएगा, E के बाद J, J के बाद L, L के बाद U, तो आपके कैरेक्टर्स अरेंज करने हैं, इसमें स्ट्रिंग नहीं। तो इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में वी आर नॉट यूजिंग स्ट्रिंग एरे, तो हमें कैरेक्टर एरे को यूज़ करना है इसमें। तो एज इट इज़ रिलेटेड टू द सॉर्टिंग, सो दैट्स वाई इसी वीडियो में साथ साथ बना दिया है। ठीक है, तो अभी क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ वर्ड, पहले हम वर्ड एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसको हम कैरेक्टर एरे में असाइन करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए लेट्स स्टार्ट। वही बबल सॉर्टिंग से ही करना है, सेम ही है, बस थोड़ा सा इसमें कैरेक्टर एरे क्रिएट कर देंगे। पहले हम स्ट्रिंग के लिए str, हमें स्ट्रिंग इनपुट करना है। चलिए पहले मैसेज दे देते हैं, इनपुट स्ट्रिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर अ वर्ड। कोई भी वर्ड है, जरूरी नहीं है ब्लू जे है, कोई भी वर्ड किसी भी लेंथ का हो सकता है। ठीक है, तो एंटर अ वर्ड, str इक्वल्स टू, str लिया हमने obj
डॉट नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट लाइन का ज़रूरत नहीं है क्योंकि अ वर्ड है, सिंगल वर्ड है। उसके बाद हम इसका लेंथ निकाल लेते हैं। कैसे लेंथ निकालते हैं स्ट्रिंग का? str डॉट लेंथ फंक्शन से। ठीक, लेंथ मिल गया। अब हमें कैरेक्टर एरे क्रिएट करना है कैर टाइप का। कैर ch, कैर का c आपका स्मॉल ही आएगा, ठीक है। कैर ch इक्वल्स टू न्यू कैर, इसका साइज क्या होगा कैरेक्टर एरे का? या तो आप रैंडमली कुछ भी ज़्यादा वैल्यू 20, 30 ले सकते हो, बट अगर स्ट्रिंग लेंथ निकाल ही ली है तो स्ट्रिंग लेंथ के इक्वल ही आएगा आपका। तो आपने यहाँ पे L पास कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा एक कैरेक्टर एरे क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमने स्ट्रिंग इनपुट किया है उसका कैरेक्टर बाय कैरेक्टर किस में स्टोर करेंगे हम? स्ट्रिंग इसके एरे में। कैसे करेंगे? फोर लूप लगाएंगे। इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन l, i प्लस प्लस। लूप कहाँ से कहाँ तक चला? 0 से l तक। क्या कर रहे हैं हम? ch i को में असाइन कर रहे हैं क्या? str डॉट कैरेक्ट, और उसमें पास कर देंगे। तो जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं वो हम एक एरे में स्टोर कर रहे हैं। ठीक, अब हमें एक एरे मिल गया तो हम उसमें बबल सॉर्टिंग लगा देंगे जैसे पहले लगाया था। यहाँ पे कर लेते हैं फॉर इंट i इक्वल्स टू 0। अगेन कितनी इटरेशन चाहिए? जितने आपके इसमें कैरेक्टर्स हैं या जितना स्ट्रिंग का लेंथ है -1, ठीक है। i लेस देन, हमने लेंथ किस में स्टोर की है? l में, तो l-1 हो जाएगा, ठीक है। सेम रीज़न जो अभी बताया था कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उससे एक कम इटरेशन चाहिए, ठीक। देन फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन l-1 तो रहेगा, बट उसमें हम किसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं? i की, l-1 माइनस i, और यहाँ हो जाएगा j प्लस प्लस, ठीक। अब हम क्या चेक करेंगे? कंपेयर करेंगे कैरेक्टर्स को। कैर 0 अगर ग्रेटर देन है कैर 1 से, एक ज्वाइनिंग एलिमेंट, तो ch है हमारा कैरेक्टर ch, इसमें हम सिंपली ग्रेटर देन साइन यूज कर सकते हैं। इफ ch ग्रेटर देन ch प्लस 1, अगर है तो क्या करे? स्वैप कर दे। तो टेम्परेरी एक कैट टाइप का वेरिएबल लेंगे, तो उसमें पहले ch की वैल्यू चली जाए, ठीक। देन ch प्लस 1 की वैल्यू किस में चली जाए? ch में, और लास्ट में टेम्प की वैल्यू ch प्लस 1, ठीक। स्वैप हो गया। देन इफ क्लोज, इनर 4 आउटर 4, और उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे? अभी हमारा कैरेक्टर्स के फॉर्म में आएगा, एरे की फॉर्म में, हमें वर्ड में कन्वर्ट कर देना है। तो हम क्या करते हैं? एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग str, ऑलरेडी लिया है हमने str, ठीक है। str1 ले लेते हैं ब्लैंक, ठीक है। किस लिए लिए है? देखो, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन कहाँ तक चलेगा? l तक, i प्लस प्लस, और इसमें क्या कर देंगे हम? जो भी हमारा कैरेक्टर का एरे है उसके एलिमेंट्स को स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करते जाएंगे, तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में मिलेगा हमें, एक वर्ड की फॉर्म में, ठीक है। chi को हम स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट किया तो वो जो स्ट्रिंग है हमें एज अ वर्ड मिल जाएगा। बाहर आके लूप से हम डिस्प्ले कर देंगे न्यू वर्ड, डिस्प्ले द न्यू वर्ड लिखा है तो हमने भी न्यू वर्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? str, ठीक। मेन क्लोज, क्लास क्लोज, right? I hope you have understood. So that's it in this video. Thanks for watching.